Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 9 linear equation in two variables of NCERT maths book. Before studying linear equation in two variables, let us know what is linear equation in one variable. In class 8 we studied about linear equation in one variable. Now what is this linear equation in one variable? Before studying linear equation in one variable, let us know what is equation. तो equation क्या है? Equation is an algebraic expression having terms, coefficients and left hand side, right hand side and sign of equality. तो अगर मैं यहाँ पर 3x plus 7 लिखूं, तो is this an equation? No, I will say this is not an equation. This is just simply एन algebraic expression. ये algebraic expression equation कब बनेगा? When I write equal to something. अगर मैं ये लिख देती हूँ 3x plus 7 equal to 5, then this is an equation. तो what is an equation? Equation is an algebraic expression having terms, coefficients and constants, left hand side and right hand side separated by sign of equality. मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी, एक साइन ऑफ इक्वलिटी होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उनमें क्या होगा? टर्म्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स. टर्म्स क्या है? दिस इज टर्म एंड दिस इज कांस्टेंट. ये भी कांस्टेंट है और इसको हम टर्म भी बोलेंगे, बट अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट की बात करें तो दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल. हम ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज x. नाउ इफ आई राइट 3x plus 5y equal to 8, then what type of linear equation is this? Linear equation in two variables. टू वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम देख रहे हैं कि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 8. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. One more question is that why do we call linear equation as linear equation? There are two reasons. Firstly, the degree of linear equation is always 1. What is degree? Highest power of the variable. यहाँ वेरिएबल क्या है? x और y. तो ये जो x और y वेरिएबल है इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? दिस इज हाईएस्ट पावर 1 और ये भी 1. तो the equation in which the variable degree of the variable is always 1, that is known as linear equation. इसी तरह से वन वेरिएबल में भी हमें जब भी इक्वेशन लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन जब लिखेंगे तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री कभी भी हमें 2 नहीं मिलेगी, पावर कभी भी 2 नहीं मिलेगी, ओनली 1 पावर मिलेगी. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लीनियर इक्वेशन. एंड वन मोर रीजन फॉर कॉलिंग दिस इक्वेशन एज लीनियर इक्वेशन इज दैट, एक और रीजन है कि हम इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं कि if we draw the graph of the line, graph of this equation, linear equation, this always will be a straight line. So linear word is derived from the word line. In every time in any equation that is linear equation, if we plot the graph of the linear equation will always be a straight line. That's why we call it as a linear equation. So this is about the equation, linear equation in one variable and linear equation in two variables. Now come to the standard form of linear equation. What is the standard form of linear equation? Firstly, standard form of linear equation in one variable, that is ax plus b is equal to 0. And where a is not equal to 0. यहाँ कंडीशन a is not equal to 0 क्यों है? Because अगर यहाँ a हम 0 कर देते हैं तो ये सिर्फ ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा. दिस इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट जो है उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते बिकॉज वेरिएबल तो होगा ही नहीं इसमें. दैट्स व्हाई वी पुट दिस कंडीशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ कम टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear
equation in two variables. Two variables. Now, what is the standard form of linear equation in two variables? That is ax plus by plus c is equal to 0. And condition is where a is not equal to 0 and b is also not equal to 0. अब ये कंडीशन क्यों लगाई? बिकॉज अगर यहाँ हम a को 0 पुट कर देते हैं तो a इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 0, x खत्म हो गया. दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा, तो हमारी वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो रही नहीं. So that's why a is not equal to 0 and also b is not equal to 0. अगर हम a को 0 नहीं पुट करते, b को 0 पुट कर देते हैं तो हमारा b खत्म हो जाएगा. b 0 into y 0. तो फिर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगी. So that's why we put these conditions where a is not equal to 0 and b is not equal to 0. Again, we form the equations if the statement is given. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हमें बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए. जैसे सपोज वी आर हैविंग अ कंडीशन दैट राम एंड श्याम played a cricket match and both of them scored total 400 scores. Okay, so अगर उन्होंने टोटल दोनों ने मिलकर 400 scores लिए तो write this statement in the form of linear equation in two variables. तो अगर हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, हमें दो चीजें दी हुई हैं, उनमें से एक को एक्सपोज कर लेते हैं और एक को वाई एक्सपोज कर लेते हैं. और फिर हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है. कंडीशन क्या है कि दोनों ने, राम और श्याम ने, दोनों ने कितने स्कोर्स लिए, 400. तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं. तो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम ये लिखें कि लेट मार्क्स स्कोर्ड बाय राम इज लेट द स्कोर्स मेड बाय राम इज x and scores made by श्याम is y, क्योंकि हमें नहीं पता कि राम ने कितने बनाए और श्याम ने कितने बनाए. तो ये जो हमारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो चीज हमें नहीं पता वो हम सपोज कर लेते हैं. तो राम के स्कोर्स x, श्याम के स्कोर्स y. हमें सिर्फ एक चीज पता है कि दोनों ने मिलकर 400 स्कोर्स बनाए. सो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस लीनियर इक्वेशन in the form or this statement in the form of linear equation as x plus y. According to statement, x plus y is equal to 400. This will be the linear equation of the statement which we have that in which we have Ram has scored, we don't know how much scores, Shyam we don't know how much scores, but we know only that कि राम और श्याम ने मिलकर कितने स्कोर्स बनाए, 400. तो इसलिए हमने राम के स्कोर्स को एक्सपोज किया और श्याम के स्कोर्स को वाई एक्सपोज किया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 400 करके हमने इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना दी. अब अगर इसी की हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर हमें बनाना होता तो ये स्टेटमेंट इस तरह से ना होती. स्टेटमेंट कैसी होती कि राम प्लेड ए क्रिकेट मैच एंड he scored he made 400 scores. उसने 400 scores बनाए तो उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. तो इसमें तो हमें पता ही है कि राम ने 400 scores बनाए हैं और उसको अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पुट करना है तो हमें फिर सपोज करना पड़ेगा लेट द scores made by राम इज x एंड फिर उसकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हो जाती, 400. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? हियर वी आर हैविंग टू थिंग्स, हियर वी आर हैविंग ओनली वन थिंग. Where we are having two things, that will be equation in two variables, and where we are having only one thing, that ये statement की questions की बात हो रही है. Where we are having only one thing, that will be linear equation in one variable. So in this way we can form the equations from the given statements. And also if I write an equation
like 3 in an equation in two variables 3x plus 6y equal to 9. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं x और y ही हैं, कोई जरूरी नहीं है. जनरली हम x और y लेते हैं, बट हम क्या करते हैं कि कई बार जो होता है x और y की जगह t s कुछ भी, हम जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी सपोज कर सकते हैं. जनरली हम x y सपोज करते हैं, बट यू कैन सपोज s और t. जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि लेट द स्कोर्स मेड बाय राम इज x, तो मैंने x सपोज किया. आप यहाँ पर t सपोज कर सकते हो, जहाँ r सपोज कर सकते हो. देन यू कैन राइट s प्लस t और r प्लस t, जो भी आप सपोज करोगे वो इक्वल टू 400 आ जाएगा. इन द सेम वे जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी, इसको हम अगर मैं कोई इक्वेशन का एग्जांपल लेना चाहती हूँ तो मैं ये भी ले सकती हूँ 3t प्लस 6r इक्वल टू 9. राइट. अब क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन है एंड आई हैव टू राइट, या ये इक्वेशन है, आई हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब I want to write this equation in the form ax plus by plus c equal to 0. तो मैं क्या करूँगी? I will write here this equation in the form of ax plus by plus c as 3x plus 6y minus 9 equal to 0. ये मैंने इस इक्वेशन को ax plus by plus c की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. क्या किया है? सिंपली आई पुट दिस 9 टू दिस साइड. ये 9 जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या होगी हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि माइनस है और मैं बोल रही हूँ कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको क्या हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? 6y प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0. तो ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में बन गई. तो हम डायरेक्टली इसको माइनस 9 पुट कर देते हैं. एंड मतलब कहने का है कि जो हमारा कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, और x और y वाली टर्म्स भी लेफ्ट हैंड साइड में होती है, और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसमें 0 ही होता है, बिकॉज आवर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस वन. So we have written this equation in the form of ax plus by plus c equal to 0. Now if we want to find the values of a, b and c from this equation, then what is the value of a here? That is 3. What is the value of b here? That is 6. And what is the value of c here? c में क्या करना है? We have to take care that if there is minus sign we have to take c as negative. अगर जहां पर प्लस है तो प्लस में लेना है, अगर जहां पर कोई भी नंबर जो माइनस है उसको माइनस 7 में लेना है. दैट मीन्स c is minus 9. If we write c equal to plus 9 that will be wrong. तो इसी तरह से जैसे मान लो ये इक्वेशन है हमारे पास 3x minus 2y and इक्वल टू 7. इसको हमने ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? a विल बी 3. पहले तो हम इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? 3x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? a इज 3. ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में हो गया. व्हाट इज b? b इज minus 2, not 2 only, and c is minus 7. अगर हम माइनस का साइन नहीं लेंगे तो our sum will be wrong. So we have to take care that while finding the values of a, b and c from the given equation, you have to take negative sign also for the value of a, b and c if there is negative sign. अगर negative sign है तभी आपने लेना है, positive है तो you have not to take. Okay. So this is about the linear equation in two variables. This is very simple and very easy chapter. So you can do it as if you learn the basics of any chapter, you can do the chapter very well. So in the next video we will be starting exercise 4.1 and after that we will be discussing the questions of 4.1. Thank you.